Okay, so this is the PPT that I have prepared for you. So we are talking about integrated and non-integrated cost accounting system. So when you talk about integration, integration का meaning क्या होता है? बोलो, what do you mean by integrated और integration का मतलब क्या होता है? यूज करते हैं ना ग्लोबलाइजेशन में, यूज करते हैं ना इंटीग्रेशन. अल्लाह. ओके, कोई बात नहीं. सो इंटीग्रेटेड मतलब आप लिंक करते हैं एक दूसरे से, तो यू से इंटीग्रेटेड. नॉन इंटीग्रेटेड मतलब दोनों ही सिस्टम जो होते हैं अकाउंटिंग के, वो क्या होते हैं? नॉन इंटीग्रेटेड होते हैं, मतलब वो लिंक्ड नहीं होते हैं. सो इंटीग्रेटेड से याद रखना है कि इंटीग्रेटेड जब बोलते हो आप, तो इट इज इंटीग्रेटेड, दैट मीन्स इट इज इंटरलिंक्ड. ओके, नाउ which books we are talking about initially here? Okay, so we are talking about cost accounting and financial accounting. When you say integrated, then they are prepared together. Okay, they are kept together. Means cost accounting records and financial accounting records are maintained together. Then you call it as integrated cost accounting system. When they are kept separately, means cost records and financial records are kept separately, that is called non-integrated. And these two are different two chapters. Okay, दोनों तरफ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे. ठीक है, सो 15 फॉर इंटीग्रेटेड, 15 फॉर नॉन इंटीग्रेटेड, सो टोटल 30 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे. Okay, and they are asked at two different places, so this is scoring also, and these two are similar only, except some changes. Everything is same. So when you understand one thing, you will be able to understand other thing. And I have prepared PPT in such a way that both the chapters will be going simultaneously. Okay, these two chapters are going simultaneously, you are learning two chapters together. Okay. To operate efficiently, business should adopt proper system of accounting. It is very important to understand whether to keep integrated cost and financial accounting, or to keep it non-integrated, means separate. So you should understand as per the needs of your business. You should understand how you should keep your books of accounts. Whether it should be kept together, that is integrated, or whether it should be kept separately. Okay, when you are keeping it separately, what is the problem? Means when you are maintaining cost records and financial records separately, there is a problem. What kind of problem you are going to face? The records as per your cost accounting and record as per your financial accounting will be different, may differ in some aspects, because cost records will be prepared at the store or at the factory, but financial records are kept for the whole organization, including the factory part, including the financial part, including your non-financial transaction, financial transaction, operating, non-operating expenses, everything is kept here. Okay, with the financial accounting, but cost records only concentrate on records related to your cost. Okay, now what happens if you are keeping it separately? There will be lot of problem, because you will not be able to tally the cost records, because some of the aspects are related to financial accounting, and some of the aspects are related to cost accounting. So to balance this, we also have to do reconciliation in case of non-integrated cost accounting system. Okay, so when you talk about integrated, they are kept together. There is no separate books. Cost records and financial records are kept together only. Okay, like you have been doing it. Now non-integrated में हम लोग cost record अलग से रखेंगे, financial record अलग से रखेंगे. It means हम लोग सिर्फ cost record ही करने वाले हैं, because we are doing cost accounting. तो हम लोग सिर्फ cost record को maintain करेंगे, हम लोग financial record को यहाँ पे maintain नहीं करेंगे. When you talk about financial records, तो आपके पास कुछ चीजें ध्यान में होनी चाहिए. अगर ये वाले ग्राफ में आपने देखा होगा, these are related to financial. जो आपको बॉक्स में अलग से दिख रहा है, अपार्ट फ्रॉम दिस एरिया, आपको जो दिख रहा है जैसे कैश, बैंक, क्रेडिटर, ठीक है, वंस अगेन कैश, बैंक, क्रेडिटर और डेटर, ठीक है, रिलेटेड टू पर्सनल और रियल अकाउंट. ये सारी चीजें क्या होंगी आपकी? पर्सनल एंड
रियल अकाउंट जो होगा दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। सो सर हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे? इसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग एक नया अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। मीन्स हम लोग कहीं पे भी कैश, बैंक, क्रेडिटर, डेटर, ठीक है, असेट्स वगैरह का नाम कहीं पे भी नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। सो सर उसकी जगह पे क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, उसकी जगह पे हम लोग एक नया अकाउंट खोलेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर कॉस्टिंग कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ अकाउंट्स है जो मैं आपको लिख कर यहाँ पे दे देता हूँ, जो कि आपके काम की चीज है एक्सेल में। क्या क्या नया, आप बहुत सारी चीजें इसमें नहीं देखेंगे बट यू हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट इट, बट आप रिलेट शायद नहीं कर पाएंगे जब तक ये बताया ना जाए। सो वन इज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्टिंग कॉस्टिंग लेजर कंट्रोल, ठीक है। So what is the role of it? This will be used for financial, real and personal account. So I hope you must have heard about real and personal account in your 11th standard itself. Okay, related to your assets and related to your liabilities. Okay, nothing is going to come over here. Whenever you talk about your cash, it is your asset. Okay, bank, it is your asset. Then when you talk about debtor, it is asset. When you talk about creditor, it is your liability. Okay, so all real and personal account won't be part of this. Okay, instead of real and personal account, we will be using general ledger adjustment account. Okay, okay, cost ledger, costing ledger control account. Okay, इसके अलावा you are already aware of it. Working store ledger पहले ले लेते हैं. Store ledger control account. So we will have around, we will have 4 control account over here. So now my question to you is, what do you mean by store? Store का meaning क्या होता है? जल्दी जल्दी बोलो चलो. Let me see how much you are aware. कॉस्ट अकाउंटिंग में तो कई बार सुना होगा आप लोगों ने स्टोर. Yes, sir. बोलो. एलेक्स तुम्हारी आवाज आगे नहीं आई. आई डोंट नो, आपने बोला यार आपका नेटवर्क इशू हो गया. हेलो. हाँ सर सुन रहे हैं. अच्छा, सुनना नहीं बेटा, बोलना है. व्हाट डू यू मीन हाँ बाय सर वही स्टोर? सोच में. हाँ. नहीं सर, ओके. लास्ट ईयर का कॉस्ट अकाउंटिंग में सुना था स्टोर लेजर. सो स्टोर लेजर सुना था बस. कंट्रोल अकाउंट नहीं, स्टोर ना, लेजर. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टोर, नॉट इवन टॉकिंग अबाउट लेजर. मैं सिर्फ है ना स्टोर की बात कर रहा हूँ. स्टोर का मीनिंग क्या होता है? A place where groceries and products are sold. Okay, so what is the difference between warehouse and store? Warehouse is kept for warehouse is a place where we can store products, not where we can't sell. It's just for storage. Store is a place where trading can take place. Okay, anybody else? Okay, so पहले तो यही बताना पड़ेगा. Store and warehouse was a part of cost sheet. Cost sheet में था तुम लोगों को. There were some expenses which were related to store, and there were some expenses which were related to warehouse, or you can say showroom. Warehouse or go down. Okay, so go down and warehouse is used as one thing only. So store is different and warehouse is different. Store expenses were charged to your factory, and
The warehouse expenses were charged to selling. Now tell me, what is the difference between store and warehouse? Store related to factory and warehouse is related to selling. Wow, something new I heard. वो तो लिखा है ना, Alex. Okay. सर अब लिख के डिफरेंस पूछ तो मैंने बोल दिया. Okay. Store is a place where you keep your raw materials. Store is a place where you keep your raw materials. Go down is a place where you keep your finished goods. This is the only reason this is your factory expenses and this is your selling expenses. Because before selling, the products are stored in warehouse or go down. Okay, so raw material is kept in store. So here we are going to use in the same way. This is the store ledger control account is being used for raw material or material, maybe direct or indirect. Okay, but material will be kept in store. So store is a place. मैं आपको बताता हूँ store कैसा दिखता है. देखो ये स्टोर है आपका जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, दैट्स द स्टोर. आपको समझाओ, ठीक है, देखा भी होगा आप लोगों ने. इट्स अ प्लेस वेयर यू कीप योर मटेरियल्स, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ठीक है, whether directly related to production, or you can see there are oils and paints and like that. You will see other materials are also there. So direct and indirect materials are kept in store. Okay. Okay. So is there any doubt? So this is not related to us. This is not related to us. Okay. One more account, that is work in progress. Work in progress account. Work in progress. आप account लिखो, control account लिखो, both are same. Then what do you mean by work in progress? Unfinished. Work in progress means your product, your raw material is in under process, but it is not still finished. Okay. So this is represented by production. So whenever you talk about production, that means it is in work in progress. Production in progress. आप बोल सकते work in progress. Okay. Then we will have finished goods control account. As you know, this is complete or finished. The product is completed or finished. Okay, finished under production. So it is now in, you can say it is now in go down or warehouse. Okay, so this terminology can be used. It is in warehouse or go down. Okay, now what is the matter of discussing what they are? Because you may be learning this for the first time, because these are some new words that you may be learning, although you have already heard about it. So these three things, it is related to material, it is related to WIP, and it is related to finished goods. ठीक है. ओके, इसके बाद भी एक टेम्परेरी बनता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल, बट वो हम लोग के लिए कंट्रोल अकाउंट में नहीं आता. दिस 4 कंट्रोल अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड. कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल लेजर होता है. ठीक है, देन फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट. नाउ लुक एट दिस एंट्रीज. If you have understood this, this is the process. You are already aware that for the production purpose we need material, labor and overheads, right? So there can be direct material or indirect material.
direct labor or indirect labor, or direct overheads or indirect overheads. Okay, so all this material is obviously, whether it is direct or indirect, it is kept in store only. When you talk about indirect labor, it is related to factory overheads. When you talk about indirect means labor and overheads, it is related to factory overheads only. Okay, so just look at this chart. आपका flow कहाँ से होता है? If you need material, if you need labor, or if you want to incur any of the overheads, what you need? Well, you need cash. Or if you do not have cash, you will have to do it on a credit basis. So you will need creditor. करेक्ट. सो आपको मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, या फिर ओवरहेड्स वगैरह आपको इनकर करने हैं, सो यू विल रिक्वायर कैश. और on the other hand, you can do it on a credit basis. If you are getting it on a credit basis, the person will be called as creditor. Okay, so ये आपके पास आने के लिए, if you need material means store बोलेंगे हम, टेक्निकली मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टोर. So store is a place where material is kept. तो अलग से आपको मटेरियल जो है आपको नहीं बनाना है. Whenever the material is coming, it is directly being charged to store only. Okay, so whenever the material is coming, so store account debit to cash and bank. और आपको पता है हम लोग कैश एंड बैंक यूज नहीं करने वाले, तो कैश एंड बैंक की जगह पे क्या करेंगे हम लोग? स्टोर अपना कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज करेंगे, या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करेंगे. ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, ये जो है जितने भी आपको दिख रहे हैं बाहर जो आपको दिख रहे हैं, इसकी जगह पे आपको क्या यूज करना है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट आप यूज करेंगे. रिटर्न कैश, बैंक और क्रेडिट सबको रिप्लेस करेगा यहाँ पे. दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड. ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये इंटीग्रेटेड का है. ठीक है, और अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं नॉन इंटीग्रेटेड के साथ में, तो सिर्फ ये जो आपको बाहर वाले टर्म दिख रहे हैं इसको आप रिप्लेस कर दो कॉस्ट लेजर कंट्रोल के साथ या फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के साथ. ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस होता है. सो व्हेन यू आर पेइंग फॉर मटेरियल, सो मटेरियल इज कमिंग इन द स्टोर. ओके, स्टोर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक. लेकिन अगर मैं नॉन इंटीग्रेटेड में हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टोर अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. When I am paying for labor, so direct labor account debit to general ledger adjustment account. When I am paying for direct overheads account debit to general ledger adjustment account. ये वाला पार्ट आपके लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर आता ही नहीं. सो डायरेक्ट ओवरहेड्स को तो आप कंफ्यूज मत करो, बट ये दोनों चीजें आपके एग्जाम में हमेशा आती है, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर. इसके अलावा आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे. ठीक है, ओवरहेड्स होगा जो कि फैक्ट्री का होगा. So when you are paying for factory overheads, so factory overheads account debit to general ledger adjustment account. When you are paying for office expenses or administration expenses, office and administration expenses account debit to general ledger adjustment account. When you are paying for selling expenses account debit to general ledger adjustment account. Let me know if you are clear with the payment part. When you are paying for material, when you are paying for labor, you just have to debit that particular account. In case of material, you have to be very careful. You are not going to use material, you are going to use the word store. Okay, store is a place where material is kept. So whenever you are talking about store means material. Okay, when you are talking about store means material. So अब आप इसको देख लो, it will be much clear now. The entry says receipt of material into store. You have purchased it on cash or credit basis. आपने दोनों में से कोई मोड आपने यूज किया है और आपने क्या किया? मटेरियल को परचेस किया. सो देयर आर टू थिंग्स, देयर आर टू अकाउंट्स व्हिच इज इन्वॉल्वड इन इट. फर्स्ट वन इज योर मटेरियल दैट इज कमिंग इन, दैट इज रिलेटेड टू स्टोर. द अदर थिंग इज योर कैश और बैंक और क्रेडिटर, द वे यू आर मेकिंग पेमेंट और यू आर getting it on a credit basis. When you are paying in a cash, you will be using word cash. आपको पता है बैंक कब यूज करते हैं? When you are paying in check. ठीक है, when you are paying through bank तो आप बैंक वर्ड यूज करते हैं. When you are not paying it through cash or bank, you are claiming credit, you are getting credit, the person will be called as creditor. Okay, so your material is going to your store. ये प्लेस पे आपका स्टोर पे जाएगा. ठीक है, so store account should be debited and कैश एंड बैंक की जगह पे हम लोग क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू, अरे बाप रे, अभी क्या है? अभिषेक,
ओके, हाँ हम लोग कहा थे मटेरियल इज गोइंग टू स्टोर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थॉरली। आप मीनिंग समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंट्रीज आर नॉट गोइंग टू बी दी सेम, बट इसको समझने के बाद आप कोई भी एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ही चार्ट में मैंने काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर किया हुआ है, तो आपने अगर ये समझा है तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एकदम आपकी बेसिक सी चीज है। ठीक है, सो ये आप समझ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो आप समझो, बोलो। सर जो आपने बॉक्स दिखाया अभी, ये जो लास्ट ईयर का कॉस्ट शीट था, कॉस्ट शीट और प्रोसेस कॉस्टिंग, उसका मिक्सअप है क्या सर ये? क्योंकि नीचे वाला देखो जो है कॉस्ट शीट एक्सपेंसेस, है। हाँ एक्सपेंसेस आर लाइक दिस ओनली। इट इज मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स और उसके बाद फैक्ट्री एंड ऑफिस, देन सेलिंग। इसी तरह से आप बाइफरकेट करते हैं। एंड इट इज मैंडेटरी आल्सो बिकॉज फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर बीइंग इनकर्ड इन वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, जो ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं वो फिनिश गुड्स के ऊपर होते हैं, और सेलिंग ओवरहेड्स कब होते हैं? जब आप गुड्स को सेल करना चाहते हैं उससे पहले। तो कॉस्ट ऑफ सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, इट इज रिलेटेड टू दैट ओनली। सो आप देखेंगे तो दोनों चीजें लिंक्ड है बिकॉज दोनों ही कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है, सर बस सो मतलब एक इसके एलिमेंट्स सिर्फ वो प्रोसेस कॉस्टिंग एंड कॉस्ट शीट, मतलब उसका एक बस एक हाँ मिक्सचर है। हाँ हाँ, वैसे ही दिखेगा आपको, क्योंकि ये कॉस्ट और दो मतलब प्रोसेस में भी आप इसी तरह से यूज करते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाता है, करेक्ट। सो आप दोनों को कंबाइन करके याद रख सकते हैं। बट यहाँ पर व्हेन यू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी, व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट स्टोर में गुड्स आया है, स्टोर में मटेरियल आया है, सो स्टोर अकाउंट शुड बी डेबिटेड। एंड डायरेक्ट को कभी कभी बोलते हैं आपने मटेरियल परचेज किया है या मटेरियल क्रेडिट पे परचेज किया है, कैश पे परचेज किया है, आपको लेना देना नहीं है। मटेरियल इज कमिंग इन, तो आप स्टोर अकाउंट डेबिट करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे? क्रेडिट जो भी आपने जिस फॉर्म में भी आपने इसको परचेज किया होगा, कैश तो कैश, बैंक तो बैंक, क्रेडिटर तो क्रेडिटर। एंड यू नो कि हम लोग कैश, बैंक, क्रेडिटर, इसमें से कोई भी टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। उसकी जगह पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? अगर आप नॉन इंटीग्रेटेड की बात करेंगे तो हम लोग स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सर ये एंट्री कब पास करना है? ये एंट्री बेटा इंटीग्रेटेड में पास करना है। बेटा ये एंट्री कब पास करना है? नॉन इंटीग्रेटेड में पास करना है। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप देखेंगे कि आप जब नॉन इंटीग्रेटेड करते हैं तो नॉन इंटीग्रेटेड करने के टाइम पे आपको कैश, बैंक, क्रेडिटर वर्ड यूज नहीं करना है। उसकी जगह पे हम लोग क्या करने वाले हैं? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करने वाले। दिस इज द ओनली डिफरेंस। दीज आर टू सेपरेट चैप्टर्स। ठीक है, लेकिन आप माइनर सा डिफरेंस अगर दोनों के बीच में नोट करेंगे तो दोनों चैप्टर पे आपको क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो दो चैप्टर आप एक साथ में ही पढ़ रहे हैं। तो राइट साइड में आपको एक चैप्टर की जनरल एंट्री है, दैट इज रिलेटेड टू नॉन इंटीग्रेटेड, और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे इट इज रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट चैप्टर्स, दोनों का वेटेज एकदम अलग अलग है। ठीक है, एग्जाम में दोनों से रिलेटेड आपको 15 मार्क्स के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो देयर। ठीक है, और अगर पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव्स का रहा तो उससे मतलब आप बाइफरकेट कर सकते हैं दो अलग अलग चैप्टर्स, इसका वेटेज बहुत ज्यादा होगा। एंड यू कैन सी देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। ओके, जस्ट दैट कि हम लोग नॉन इंटीग्रेटेड में वर्ड कैश, बैंक और क्रेडिटर यूज नहीं कर सकते बिकॉज वी आर नॉट कीपिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। हम लोग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नहीं रख रहे हैं नॉन इंटीग्रेटेड में, इसलिए उसकी जगह पे हम लोग टर्म को रिप्लेस करेंगे। और क्योंकि हम लोग को टैली करना है अकाउंट को, तो उसकी जगह पे कुछ तो यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज डबल एंट्री सिस्टम पूरा नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको कंप्लीट करने के लिए जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट करते हैं। लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस एंट्री। इस एंट्री में आपको कोई डाउट है क्या? आपने मटेरियल परचेस किया है, बेसिक एंट्री। ठीक है, तो मैं आपको ये चार्ट के थ्रू समझाता हूँ। यू हैव परचेस्ड मटेरियल। ठीक है, सो मटेरियल अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक, क्रेडिटर। ठीक है, और अगर आप नॉन इंटीग्रेटेड में हैं तो स्टोर अकाउंट डेबिट, मतलब ऑब्वियसली हम लोग मटेरियल वर्ड यूज नहीं करने वाले, स्टोर अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ पे भी आप स्टोर ही लिखेंगे, यहाँ पे भी आप स्टोर लिखेंगे। व्हेन यू आर डेबिटिंग स्टोर मींस योर मटेरियल इज कमिंग इन। ठीक है, स्टोर में आपके मटेरियल आ रहा है। ठीक है, तब आप स्टोर अकाउंट क्या करेंगे? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट करेंगे। और क्रेडिट क्या करेंगे आप? कैश एंड बैंक इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड, और आप कैश एंड बैंक नहीं लिखेंगे इन केस ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड। दीज आर टू डिफरेंट चैप्टर्स, दोनों के बीच में आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, बट बिकॉज जनरल एंट्रीज आर वन इन द सेम,
सिर्फ एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, यहाँ पे कैश बैंक क्रेडिटर वर्ड यूज नहीं होने वाला है, इसकी जगह पे आपको जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना है, ठीक है। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री, जल्दी बोलो। हाँ सर। हाँ, so now we are talking about direct material issued for production. Now ये जो material था, you have used it for production. Now tell me what is the journal entry. ये जो मटेरियल है आपका स्टोर जो है, आपने क्या किया है, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब प्रोडक्शन के लिए इशू किया है, सो व्हाट शुड बी दी जर्नल एंट्री। बोलो किस अकाउंट में जा रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। सो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट शुड बी डेबिटेड, और कहां से जा रहा है, स्टोर से जा रहा है, तो स्टोर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, ठीक है। इसलिए एरो की तरह बताया है आपको, देखो स्टोर इज अ प्लेस वेयर मटेरियल इज केप्ट, so direct material issued for production, so your material is being used in production, okay. तो So सर नेक्स्ट प्रोसेस ऐसा है क्या, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। अगर आपका गुड्स फिनिश हुआ है तो आप वो एंट्री हाँ पास करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका गुड्स फिनिश हुआ है तो आप यही एंट्री पास करेंगे, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस, उसकी भी अलग से एंट्रीज आती है, ठीक है। फिर वो बोलता है कि आपने जो सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो अप्लाई कर दिया है, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसा करके दिया होता है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, दैट इज डिफरेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज डिफरेंट, दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट, ठीक है। cost of finished goods is used for finished goods and cost of goods sold is used for cost of sales, okay. These are two different things, so if you differentiate between these two, okay, or everything is going to be used in the same way, there is no other way, okay. If you remember the chart you will be able to answer it, there is absolutely no issue, okay. So work in progress account debit to store, so आपका मटेरियल जो है वो प्रोडक्शन में इशू हुआ है, so production means WIP or material means store, so WIP account debit to store, and there is no any financial term, आप देख सकते हैं कोई financial terms नहीं है यहाँ पे, so same entry दोनों जगह पास हुई है, there is no difference, ठीक है। सिर्फ जब कोई financial term use होगा then we will be replacing it by general ledger adjustment account, this is the only difference between these two accounts, okay. So आगे बढ़े हम लोग। यस सर। Okay, material purchased and issued for production directly. Now you are saying that you have not kept the material in store. आपने direct purchase करके कहाँ पे use किया, प्रोडक्शन में। Now tell me the entry. आपने स्टोर में नहीं रखा, आपने डायरेक्टली क्या किया, परचेस करके प्रोडक्शन में डाल दिया। परचेस अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस। बेटा वर्क इन प्रोग्रेस में जा रहा है, तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ठीक है। हाँ चलो, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और क्रेडिटर। If you see, this is the combination of these two entries. स्टोर में आया, you have paid it. Work in progress में गया स्टोर से. Now this is the combination. You have directly entered it in the work in progress and you have paid for it. इसका ही मतलब होता है, इसको स्पेशल परचेज भी बोलते हैं फॉर एनी जॉब। आपने डायरेक्टली जॉब के लिए क्या किया, स्पेशल परचेज किया, तो कभी कभी आपको बोला जाता है स्पेशल जॉब के लिए आपने क्या किया, परचेज किया, स्पेशली परचेज फॉर जॉब, ठीक है। सो आपको पता है जनरली व्हेन यू हैव टू मेक टी, तो आप शुगर क्या करते हैं, पहले लाते हैं और अपने स्टोर मतलब आप मटेरियल लाते हैं तो कहीं ना कहीं रखते हैं, सो दैट प्लेस इज कॉल्ड योर स्टोर। लेकिन कभी कभी आपके पास शुगर खत्म हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्टली मार्केट से लाते हैं और डायरेक्ट क्या करते हैं, आप अपने प्रोडक्शन में यूज कर लेते हैं। सो व्हेन यू आर बाइंग एंड कीपिंग इट, तो स्टोर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। अब आपने स्टोर किया ही नहीं, आपने डायरेक्ट यूज किया प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन मतलब वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। सो दीज आर दिस इज द डिफरेंस। डायरेक्टली आपने क्या किया, प्रोडक्शन में यूज किया परचेज कर, तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। और क्योंकि कैश एंड बैंक वर्ड यूज नहीं करने वाले हैं हम लोग, उसकी जगह पे क्या वर्ड यूज करने वाले हैं, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू
जनरल लेजर, एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, लेट मी नो इफ देयर इज एनी डिफरेंस। आपको समझ में आया है? कुछ डिफरेंस है, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वी आर जस्ट डिस्कसिंग इट। अभी तक हम लोग ने कोई जनरल एंट्री के पार्ट पे गए भी नहीं। okay? वी आर जस्ट डिस्कसिंग इट, ताकि आपको डिस्कशन से जनरल एंट्री जो है वो समझ में आनी चाहिए। Okay, is there any difficulty in understanding this? This is very difficult chapter, मैं पहले भी बता रहा हूँ. But when you understand it, when you understand the terminology, when you understand the sequence of the activities, you will be able to map it properly. Okay. Okay, have you understood? Yes or no? Yes, sir. Indirect Actually, sir, material. बोलो. सर वो लास्ट जो वर्क इन प्रोग्रेस था, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो जो इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड में, इंटीग्रेटेड में कैश यूज कर सकते हैं ना सर, मतलब कैश अकाउंट हाँ, करके। integrated में मतलब you are keeping the financial record also. So you can use cash and bank. But in case of this, you cannot use any personal or real account here. Apart from stock, no real account will be maintained here. ठीक है, स्टॉक के अलावा आपको पता है स्टॉक जो होता है वो भी आपका रियल अकाउंट में आता है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस स्टॉक आप कोई भी रियल अकाउंट मेंटेन करने वाले नहीं है यहाँ पे. ठीक है, ओके. Okay, now you are using your material for factory or office or selling. So sir, is this possible? क्या आप मटेरियल यूज कर सकते हैं फैक्ट्री के लिए, ऑफिस के लिए, सेलिंग के लिए? सो मैं आपको एक जनरल सी चीज बताना चाह रहा हूँ. क्या आप क्लीन करते हैं ऑफिस को? क्लीन करते हैं क्या ऑफिस को? यस और नो? यस करते सर। हैं. फैक्ट्री को क्लीन करते हैं? यस. सेलिंग एरिया को, शोरूम वगैरह को क्लीन करते हैं? यस. व्हाट यू रिक्वायर? आपको फिनाइल लगेगा, ठीक है, आपको क्लोथ लगेगा. ये सब क्या है? ये सब आपका मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है. इनडायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल में डिफरेंस क्या होता है बेटा? डायरेक्ट मटेरियल इज यूज्ड इन प्रोडक्शन फॉर मेकिंग योर प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें होती है जो प्रोडक्शन में यूज नहीं होती, बट यू रिक्वायर इट. आपको कभी कभी फेविकोल लगता है, ठीक है, ऑयलिंग वगैरह करने के लिए आपको ऑयल वगैरह लग सकता है. दीज आर नॉट यूज्ड इन प्रोडक्शन. ठीक है, प्रोडक्शन मींस आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए वो उतना रेशो में, सेम रेशो में यूज नहीं होता होगा, ठीक है, लेकिन आपको अदर वर्क करने के लिए भी चीजें यूज करनी पड़ती हैं. दैट इज योर इनडायरेक्ट मटेरियल. बट वेदर इट इज डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, इट इज केप्ट इन स्टोर ओनली. तो आपने क्या किया है? इन सारे कामों के लिए क्या किया है? आपने मटेरियल को यूज किया है. सो व्हेन यू आर यूजिंग इट फॉर फैक्ट्री, सो यू विल बी यूजिंग वर्ड फैक्ट्री और वर्क्स. आपको पता होना चाहिए फैक्ट्री एंड वर्क्स वर्ड जो होता है वो फैक्ट्री के लिए यूज होता है, ठीक है. सो दीज आर द सेम वर्ड्स ओनली. फैक्ट्री एक्सपेंसेस और वर्क्स ओवरहेड्स or factory overheads or works expenses, these are same only. Okay, so if you are using it for factory, so you are going to debit factory account and store से जाएगा material, कभी भी store से ही जाएगा, so you will be crediting store account. If you are using it for office, so office expenses account debit to store. If you are going to use it for the selling area, so selling overhead account debit to your store. Let me know if there is any doubt in this. So when you understand the sequence, you will be able to pass any entry. ठीक है, जब आपको समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है. सो आपका क्वेश्चन में दिया है कि इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन फैक्ट्री, तो आपको उस हिसाब से क्या करना है? आपकी एंट्री पास करना है, ठीक है. अगर प्रोडक्शन वर्ड यूज किया है बेटा तो ध्यान देना, प्रोडक्शन मींस WIP. प्रोडक्शन मींस WIP, ठीक है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड योर फैक्ट्री, ठीक है. तो फैक्ट्री मतलब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं. ओके, देन नेक्स्ट, ये एक ही जनरल एंट्री हम लोग बहुत सिंपल सी है. आप मुझे बताइए आप कि जब स्टोर से वर्क इन प्रोग्रेस में जा रहा था तो आपने वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर लिखा था. अगर रिटर्न होगा, वर्क इन प्रोग्रेस से स्टोर में वापस जाएगा, रिटर्न होगा, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस से स्टोर में जा रहा है वापस से, मीन्स आपको यूज नहीं हुआ वो मटेरियल, तो आप क्या करेंगे? मैम, स्टोर अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। करेक्ट है, तो यही बोल रहा है वो, डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न टू स्टोर. करेक्ट, स्टोर अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस, सिंपल सी चीज है, ठीक है. तो यहाँ तक कि हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है. इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, लेट मी नो, ठीक है. तो मैंने इस पे बहुत मेहनत किया, मतलब ये इमेजेस वगैरह अवेलेबल नहीं थी, बट मैंने ये करके डाला है सो दैट विजुअल इफेक्ट से आपको समझ में आएगा व्हाट इज हैपनिंग.
तो आपको जर्नल एंट्री समझ में आएगा, क्योंकि नॉन इंटीग्रेटेड समझना इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट। और उसके बाद ये बनाया है, लास्ट ईयर बहुत मेहनत किया था, तो लास्ट ईयर स्टूडेंट के लिए किया था, तो आपके लिए काम आता है। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस मुझे करने हैं जर्नल एंट्रीज में, वो मैं करूंगा बाद में, बट ये कंप्लीट है, फिलहाल आपके सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट है। इफ यू लुक एट दिस क्लोजली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जितनी भी चीजें हैं वो इस चार्ट से आपको लिंक्ड होगी हर एक चीज। ठीक है, ये दिस इज बाय डिफॉल्ट चार्ट आप बोल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मतलब अगर मटेरियल इशू हुआ है तो मटेरियल इज ऑलवेज इशूड इन प्रोडक्शन। ठीक है, आपका फिनिश गुड्स बना है तो इट विल ऑलवेज बी फ्रॉम वर्क इन प्रोग्रेस टू फिनिश गुड्स। ठीक है, इफ देयर इज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इट इज ऑलवेज फ्रॉम फिनिश गुड्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, सो इस तरह से ही सीक्वेंस आता है। कभी अगर वो बोल रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल एब्जॉर्ब हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ है, तो इट इज ऑलवेज इन प्रोडक्शन। डायरेक्ट लेबर यूज हुआ है, इट इज ऑलवेज इन प्रोडक्शन। फैक्ट्री ओवरहेड यूज हुआ है, इट इज ऑलवेज इन प्रोडक्शन। मतलब पहले तो आप फैक्ट्री ओवरहेड को करेंगे, फिर फैक्ट्री ओवरहेड का जो टोटल होगा वो कहाँ पर जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। सेम गोज टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बाय डिफॉल्ट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर यूज्ड फॉर finished goods. By default selling expenses are used in cost of sales. So these are by default charts. आपने अगर ये समझ लिया तो आपको बाकी की सारी चीजें, अब अगर क्वेश्चन में क्लियरली दिया है बेटा कि मोमेंट है, मतलब वर्क प्रोडक्शन में जा रहा है स्टोर से, तो आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं है। whenever it is going it is debited, it should be debited, and from where it is going it should be credited. So there should not be any problem in that. लेकिन ये by default चार्ट है, आपको ये याद रखना है। कभी कभी आपको क्लैरिटी नहीं क्लियर, तो उसके हिसाब से आपको ये चीज याद रखना है। आई विल स्टॉप शेयरिंग नाउ। एंड है क्या हमारा हीरो है क्या, महेश है क्या यहाँ पे? महेश दिख नहीं रहा मुझे, और इतना टाइम हो गया मैंने इसकी आवाज भी नहीं सुनी। क्या? अभिषेक इसको अनम्यूट क्यों करता है अपने आप को अभिषेक? ओके, अटेंडेंस कौन लेगा जल्दी? एलेक्स ले लो बेटा। सर कर आज रहा हूँ। महेश नहीं है, हाँ ठीक। चलो, सो आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ।